Good evening, everybody. Again, we are sorry we have some technical issues that for Dr. Chinmay, so that's why there's a delay here. I'm just helping him with that. So as soon as that gets sorted, we'll be in. Please, please hold on for just a few minutes more, and we will get started. Hi, everybody. This is Anand here back again. We are still trying to resolve the technical issue, so we'll soon be putting that to rest, and we'll start off the webinar. I'm really sorry for the delay here.
Hi, everybody. So this is Anand here, and we are going to start the webinar now. Okay. So we'll start with a brief introduction, and so we'll be starting with the today's webinar now. We are again sorry for the delay here. Our today's webinar topic is Ras Aushadhi prescriptions in common GI diseases, and our distinguished speaker for today is Dr. Chinmay Phondekar. To give you a brief about Dr. Chinmay Phondekar is a MD Ayurvedacharya, having 7+ years of expertise in Rasashastra and Vaishajya Kalpana from R.A. Poddar Medical College, Mumbai. Dr. Chinmay has expertise in herbo, mineral, and metallic Ayurvedic drug designing and preparations. Dr. Chinmay has worked in R&D and manufacturing sections in Ayurvedic pharmaceutical industry at Ayurved Rasashala, Pune. Dr. Chinmay has a special interest in gastroenterology and hepatology. He has conducted lecture series in hepatology and diseases of esophagus and stomach in Ayurveda for more than 300+ Ayurvedic doctors in India and other countries. He has also successfully conducted national symposiums and seminars on GI and liver diseases for medical practitioners. Dr. Chinmay, we are honored to have you with us today to conduct this webinar. Let us all welcome Dr. Chinmay Phondekar for today's session. Dear sir, can you start with your session now? Hello. Yes, Dr. Chinmay, we can hear you, sir. Is it audible now? Yes, sir. I want to share my PPT, but here share option. Screen window or tab. Is it visible now? Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Dr. Chinmay, we can see your screen. Yes, sir. PPT is visible? Yes, sir. Thank you. Thank you, Dr. Chinmay. Yeah. Sorry for late. नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तकधारिणी विद्यारंभे करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा. That's it. Good evening to all. Today we are going to discuss about Bhasma prescriptions in common GI diseases. जब कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है तब मन में एक संदेह उत्पन्न होता है कि उसका व्याधि इंपॉर्टेंट है, औषध इंपॉर्टेंट है, या वो कौन से अवस्था में, व्याधि के कौन से अवस्था में हमारे पास आया है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है. मेरे ख्याल से कौन से व्याधि अवस्था में रुग्ण हमारे पास आता है वह सबसे महत्वपूर्ण होता है. We'll see one by one about व्याधि अवस्था and its chikitsa. Case number 1, 38-year-old female brought to your OPD. She is known case of autoimmune hepatitis. She was under allopathic treatment which was suggested for liver transplant. Complaining of icterus since 3 months, weight loss of around 5 kg in 2 months. There is a past history of amenorrhea since 6 months. There was no drug history or family history. On physical examination, her vitals were stable. There was mild icterus. Rest Dr. other Chinmay, things were normal. On Dr. abdominal Chinmay, examination, your slides are not moving. hello, Your slides are not moving, sir. slides are not visible. No, they are not moving. You are on first title slide itself. Is it moving now? No, sir.
No. No. Sir, can you unshare and share again? Yeah. Yes. Yeah, hi. Till the time we get this sorted out, uh, I think Purvi, you have something to say? You have your hands up. I'm allowing the mic for you. Miss Purvi, you can unmute yourself and you can talk. Is it visible now? Dr. Chinmay, no, sir. No. Okay. Dr. Chinmay, in case of issues, you can any issues, you can just share the PPT with me and I'll share on your behalf, if that's okay with you. Is it visible now? Yes, Dr. Chinmay, you can see it. Is it visible? Yes, sir. Okay. Now moving. Whether Yes, sir. It slides is are more. moving. Yes, sir. It is on case one now, sir. Case number 1. Yes, sir. Okay. Yeah. On abdominal examination,
On inspection, the shape was flat. Umbilicus was centrally placed, which was retracted and inverted, which was peculiar. Abdominal movements were freely with respiration as in normal cases. On palpation, there was no tenderness or no hepatosplenomegaly. On percussion, dullness over organs. These were her LFT. Direct bilirubin, total bilirubin was 3.9. SGPT was 170 and SGOT was 121. ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस ये बहुत बार 2-3 अलग अलग संप्राप्ति आती है, उसमें से ये रुग्ण में हलीमक की संप्राप्ति जैसी थी. यदा तु पांडोर्वर्ण स्यात् हरित शावपीतकः बल उत्साह क्षय तंद्रा मंदाग्नित्व मृदु ज्वर स्त्रीषु अहर्षो अंगमर्दश्च श्वास तृष्णा अरुचिभ्रम हलीमकम तदा तस्यात् विद्यात् अनिल पित्ततः वात पित्तात्मक संप्राप्ति रहती है. इसका प्रोग्रेशन फास्ट रहता है. On ultrasound, there were changes of cirrhosis. There was mild splenomegaly. Portal and splenic veins were prominent. आप यहाँ पे देख सकते हैं more than 13 mm. जब more than 10 mm उसका diameter रहता है तब उसका prominency बढ़ता है. There was a possibility of portal hypertension. ऑटोइम्यून फैक्टर्स में ये कुछ पॉइंट्स हमें हमेशा ध्यान में रखने चाहिए. तदा तस्य गर्भस्य मातृजानाम अवयवानाम अन्यतमो अवयव विकृतिम आपद्यत एको अथवा अनेके यस्य यस्य ही अवयवस्य, मतलब अवयव की विकृति है, बीज भाग की विकृति है या बीज उपतप्त भाग की विकृति है, उसके अनुसार हमें चिकित्सा में द्रव्यों का चयन करना चाहिए. ऑटोइम्यून फैक्टर में केसेस में ये भी एक फैक्टर देखना चाहिए, त्रिविध बल. जैसे सहज बल रहता है, कालज बल रहता है, युक्तिकृत बल रहता है. ये सभी फैक्टर्स ऑटोइम्यून डिसीजेस में इंपॉर्टेंट रहते हैं. जैसे युक्तिकृत रहेगा आहार, चेष्टा और योगज. इन ये पॉइंट्स ध्यान में रख के उसके अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए. कालांतरात खरीभूता कृच्छ्रा स्यात् कुंभ कामला. बहुपित्त कामला की अवस्था रहती है शुरुआत में. जब सिरोसिस की अवस्था आती है वहां पे फाइब्रोसिस होने लगता है, यकृत खरीभूत होने लगता है. कालांतरात मतलब अवस्थांतर होता है. कुंभ अंतःसौशीर्य साधर्म्य कोष्ठ, वहां पे डिसेल्यूलराइज लीवर होने लगता है. आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्स्ट पिक्चर है ये नेटिव लीवर का है, सेकंड एंड थर्ड पिक्चर है वो डिसेल्यूलराइज लीवर है. सौशीर्य आने लगता है. खरीभूत मतलब काल प्रकर्ष खरीभूतो जरठताम गतो न सिद्ध्यति, वहां पे स्टिफनेस आने लगता है. आप फाइब्रोस्कैन पे देखेंगे वहां पे उसके 4 ग्रेडेशंस रहते हैं. वहां पे जरठता मतलब स्टिफनेस आने लगता है, वो असाध्य अवस्था होती है. जज्जट ने कहा है अचिरोत्पन्नो अपि शूनानाम मध्ये यो वा पीतानि पश्यति. एक्यूट स्टेज है, मध्य भाग में शोथ है और उसको सब कुछ पीला दिखने लगता है. ये खरीभूत अवस्था है. यहाँ पे ये अवस्था दिखने लगी मतलब यहाँ पे लिवर फाइब्रोस हुआ है या फाइब्रोस होना शुरू हुआ है. चिरोत्पन्न खरीभूतो अत्यर्थ रुक्षित सर्वधातु न सिद्ध्यति. क्रॉनिक स्टेज है, क्रॉनिक लिवर डिसीज की स्टेज है. फाइब्रोसिस होने लगा है, उसके सभी धातु रुक्ष होने लगे हैं, न सिद्ध असाध्य अवस्था होती है, ऐसा चक्रपाणी का कहना है. अभी जब खरीभूत यकृत की के चिकित्सा का विचार आता है तब स्नेहपान जलपान मतलब स्नेहपान में हम पंचगव्य घृत, महातिक्त घृत, कल्याणक घृत ये इससे कर सकते हैं. सिर्फ जब स्नेहपान करते हैं तब यूरिन रूटीन करके लेना चाहिए. वहां पे बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, इतना ध्यान में रखना चाहिए. जलपान
मृद्विका आमल की सिद्ध जल का दे सकते हैं। क्षीरपान में गुड़ची सिद्ध क्षीर का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे थ्रोम्बोपोएटिक फंक्शंस मेंटेन रहने को एंड अल्ब्यूमिन लेवल मेंटेन रहने को उसका सहायभूत होता है। काश्यप संहिता में हलीमक की चिकित्सा बताई है, वहां पे रक्त पित्त औषधम यच्च तच्च अपि अत्र प्रशस्यते तस्य प्रतिक्रियां कुर्यात् वात पित्त हरिम बुधः। मतलब हमने देखा था हलीमक ये वात पित्तात्मक संप्राप्ति रहती है। हमें यहाँ पे जब चिकित्सा का वैसे ही हमें काश्यप संहिता में उसकी चिकित्सा करते समय वात पित्तग्न द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। रक्त पित्त में जो औषध द्रव्य आए हैं, औषध आए हैं, इसका भी प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। उपस्निग्धम ततस्तम तु स्रंसयेत बलकालवित। उपस्निग्धम स्नेहन करके उसका स्रंसन करना चाहिए। सर्पिशी मधुर घृतों का प्रयोग करना चाहिए। यापन बस्ती अनुवासन बस्तियों का प्रयोग करना चाहिए। और अंत में अग्निवृद्धि कर अरिष्ट योगों का प्रयोग करना चाहिए। अभी जब रक्त पित्त औषधम यच्च तच्च अपि प्रशस्यते ऐसा कहा है, वहां पे हम कौन से द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे चंद्रकला रस, प्रवाह पिष्टि, कांतलोह भस्म, सुवर्ण गैरिक, इसका प्रयोग कर सकते हैं। वनस्पति जो द्रव्यों में सारिवा, मुस्ता, आमल की, गुड़ची, उशिर ऐसे द्रव्यों का भी प्रयोग कर सकते हैं। अभी जब रसशास्त्र में या रसौषधियों का जब हम प्रयोग देखते हैं, उसका वर्णन देखते हैं, उसकी फलश्रुतियां देखते हैं, तब हमें कुछ वैशिष्ट्यपूर्ण उसके गुण मिलते हैं, उसकी फलश्रुतियां मिलती है। जैसे सर्व व्याधि हर, आयुष्यकर, असाध्य हर, धातु विवर्धन करने वाले, ओजो वर्धन करने वाले, पुष्टि वर्धन करने वाले ऐसे द्रव्यों का हमें यहाँ पे चयन करना होता है। जैसे ओजो वर्धन करने वाला सुवर्ण है, पन्ना है, हरताल है, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। रसायनेशु सर्वेशु वैक्रांत, सुवर्ण मक्षिक, मनशिला जैसे द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं। मृत्युग्न द्रव्य है, अभ्रक है, सुवर्ण मक्षिक है, शिलाजित है, गंधक है, हरताल है, कांतलोह है, वज्र है, ऐसे द्रव्य जो मृत्युग्न सेट ऑफ ड्रग्स में आते हैं, इनका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। आम विकार रहेगा तब अभ्रक, गंधक, ताम्र जैसे द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं। ये सब ससंदर्भ है या हमारे ग्रंथों में ही दिए हुए हैं। शूलहर, अभ्रक, विमल, ताम्र, दुग्धपाषाण, कांतलोह, पित्त जो शूल रहेगा, एक्यूट पेन रहेगा, दुग्ध पाषाण जैसे द्रव्यों का हम प्रयोग कर सकते हैं। अभ्यंतर प्रयोग कर सकते हैं, बाह्य प्रयोग भी कर सकते हैं। वैक्रांत भस्म, ये पर्टिकुलर केस में हमने वैक्रांत भस्म का प्रयोग किया था। आयु प्रदश्य बलवर्ण करो अतिवृश्य प्रज्ञाप्रद सकल दोष गदापहारी। जब ऑटोइम्यून फैक्टर रहता है, तब उसके सेल्यूलर लेवल पे काम करने के लिए, उसको मेमोरी एनहांस करने के लिए वैक्रांत जैसे, जहां पे प्रज्ञाप्रद ऐसे उसकी फलश्रुति में बताया गया है, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। रसायनेषु सर्वेषु पूर्वगण्य प्रतापवान विषग्नो रसराजश्च, मतलब सभी रसायन में श्रेष्ठ है ऐसा वैक्रांत भस्म के बारे में कहा गया है, जो देह दार्ढ्यकृत है। पांडु, उदर, ज्वर, श्वास, कास, क्षय, प्रमेह, इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। अभ्रक भस्म, परमम अमृतम वात पित्त क्षयग्नम। हमने देखा था कि जो हलीमक की संप्राप्ति है वात पित्तात्मक है। वात पित्त जो है, हमें काश्यप संहिता में लिखा गया है कि हलीमक की चिकित्सा में वात पित्तग्न द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। अभ्रक भस्म की फलश्रुति में भी वात पित्त परमम अमृतम वात पित्त क्षयग्नम प्रज्ञाबोधि, यहाँ पे भी जैसा वैक्रांत भस्म के बारे में कहा है प्रज्ञाप्रद, वैसे ही अभ्रक भस्म के बारे में कहा है प्रज्ञाबोधि। वृक्ष है, आयुष्य बढ़ाने वाला है, दीपन करने वाला है, शीतवीर्य है, ऐसे द्रव्यों का हम प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे हमने वैक्रांत भस्म 30 मिलीग्राम, अभ्रक भस्म 125 मिलीग्राम, आमल की चूर्ण 500 मिलीग्राम और गुड़ची 1 ग्राम, ये प्रोपोर्शन में हमने प्रयोग किया था। यूजुअली यही प्रोपोर्शन में हम प्रयोग करते हैं।
कुंभक आमला की चिकित्सा में सुश्रुत संहिताकार कहते हैं धातु नदीजम जतुशैलजम व कुंभावये मूत्रयुतम पिबेद्वा। सुवर्ण माक्षिक भस्म, शुद्ध शिलाजित और मंडूर भस्म इनका प्रयोग करना चाहिए। सुवर्ण माक्षिक भस्म के विशेष में हम जब देखते हैं, पांडु मतलब 3 ही द्रव्य सुश्रुत संहिताकार ने बताया जो कुंभक आमला में प्रयुक्त होने चाहिए। उसमें से पहला आता है सुवर्ण माक्षिक भस्म, जो योगवाही है, त्रिदोषग्न है, पांडु शोथ विष दोषाधिकान हरेत, जीर्ण ज्वर, अपस्मार, ऐसे क्लिनिकल कंडीशन रहेगी, वहां पे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। मंडूर भस्म, मंडूर भस्म की फलश्रुति देखिए, पांडु श्वेतु शोषजित हलिमकम कामलाम च प्लीहानम कुंभकामलम, मतलब पांडु शोथ हलिमक कामला प्लीहा कुंभकामला, मतलब जो प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज रहता है वहां पे सिक्वेंशियली यहाँ पे बताया गया है। पांडु, बाद में शोथ, पांडु शोथ में, बाद में हलिमक, कामला, प्लीहा, कुंभकामला, ऐसे सभी क्लिनिकल कंडीशंस में हम मंडूर भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। थर्ड वन आता बताया गया है शिलाजित, जो मेद छेदकर है, मेह अग्निमांद्यापह है, पांडुहर, शोफहर, प्लीहा पे कार्य करने वाला, ऐसे शिलाजित के बारे में बताया गया है। रजत भस्म, जो व्यवस्थापन करने में उत्तम है, कुंभकामला ऐसे स्टेज में डेवलप होती है, एंड स्टेज ऑफ लिवर डिसीज उसको कहते हैं, मतलब वहां पे अल्बुमिन ड्रॉप होने लगता है, पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप होने लगता है, थ्रोम्बोपोएटिक फंक्शंस डिरेंज होने लगते हैं, ऐसे सब क्लिनिकल कंडीशंस में रुग्ण हमारे पास आता है, तब हमें ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए जो व्यवस्थापन करेगा, जो ओजोवर्धक रहेगा, जो परम रसायनम ब्रह्महारी पित्तामय प्रशनम, आयुष्य बढ़ाने वाला, आयुष्य, ऐसा रजत भस्म के बारे में कहा है। मदात्य अत्याकरम वन्यमान्य प्रणाशनम विषग्न, ऐसे द्रव्य विशेष है। अभी सुवर्ण माक्षिक भस्म, मंडूर भस्म, शिलाजित, जो सुश्रुताचार्य ने बताया है 3 द्रव्य, इसका साथ में आने वाला कौन सा कल्प है क्या, तो है ताप्यादि लोह, इसका हम प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। उसके फलश्रुति में कहा है विशेषाद हंति अपस्मारम कामलाम गुदजानी च। यकृत, ये एक त्रिविध मर्म में उसका वर्णन नहीं है, लेकिन ये एक वाइटल ऑर्गन में आता है और वैसे ही उसको ट्रीट किया जाना चाहिए। रसायन, जो भेषजाश्रितानाम रस वीर्य विपाक प्रभवाणम आयुर्बल वीर्य दार्ढ्याणम वयस्थैर्यकराणम अयनम लाभोपायो रसायनम, जो व्याधि निमित्त रसायन के तौर पे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसमें सर्वश्रेष्ठ रहता है सुवर्ण, हेम, सर्व विषाणी, जहां जहां गर्भ विष रहेगा या अन्य स्वरूप के विष रहेंगे, वहां पे हमें सुवर्ण का प्रयोग करना चाहिए। सुवर्ण भस्म, जो विषग्रह है, ब्रूहण करने वाला है, साथ में ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रूहण लिखा है, साथ में ही वो लेखन करने वाला भी है। व्रणग्न है, व्रण वस्तु जहाँ पे उत्पन्न होती है उसको नष्ट करने का कार्य सुवर्ण भस्म करता है। ओजो धातु विवर्धनम बलकर है, पांडवामय ध्वंसनम सर्व विषापहम, ऐसा उसका वर्णन है। ऐसे सुवर्ण भस्म जैसे द्रव्यों का हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। कुछ सुवर्ण कल्प है, जैसे त्रैलोक्य चिंतामणि रस, सुवर्ण मालिनी वसंत, सुवर्ण भूपति रस, इसके अवस्था अनुसार हम इसके प्रयोग कर सकते हैं। जैसे त्रैलोक्य चिंतामणि रस है, निहंती आशु जरा मृत्युम न संशय, जो हलीमक में उपयुक्त होता है, जलोदर में उपयुक्त होता है, प्लिहोदर में उपयुक्त होता है,
पांडु मृत्युघ्न ऐसे वर्णन जहां पे आए हैं रसशास्त्र में, ऐसी फलश्रुति लिखने का प्रघात है, वहां पे हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। नाउ केस नंबर 2, 50-year-old male complaining of pallor, loss of appetite, weakness. There was profuse perrectal bleeding of around one small bowel. On examination, there was mild hepatomegaly, splenomegaly 1 plus below costal margin. He was taking treatment for bleeding piles for 3 months. Nobody had examined whether there is piles or other things like liver disease or any other type of disease. He was just getting treated for bleeding piles. Unfortunately, he was not having piles. जब मेरे पास रुग्ण आया तब मैंने उसका अल्ट्रासाउंड करके लिया, वहां पे उसमें सिरोसिस आया, माइल्ड हिपेटोस्प्लिनोमेगाली था, पोर्टल हाइपरटेंशन था, प्लेटलेट काउंट वाज अराउंड 50,000, लेस देन 50,000 था। पोर्टल हाइपरटेंशन की जब क्लिनिकल कंडीशन आती है उसका एक ट्रायड रहता है, स्प्लिनोमेगाली, असाइटिस, कोलेटरल वेंस, कैप्यूट मेडुसा एंड हेमेटेमेसिस एंड मलिना, इसका ट्रायड रहता है। उदरम अरुणवर्णम विवर्णम व नील हरित हारिद्र राजिमत भवति। हमारे ग्रंथों में इस तरह से कुछ वर्णन मिलता है, जैसे अरुण वर्ण, विवर्ण, नील, हरित, हारिद्र, राजिमत, ऐसे जब दिखता है तब हम कह सकते हैं कि इसमें पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप होने लगा है या हुआ है। इस तरह से कुछ वर्णन मिलता है। नाउ साइट ऑफ कोलेटरल वेसल फॉर्मेशन, कहाँ पे कोलेटरल वेसल डेवलप होते हैं, जैसे डिस्टल इसोफेगस रहेगा, स्टमक रहेगा, रेक्टम रहेगा, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल रहेगा, रीनल, लंबार, ओवरियन, टेस्टिकुलर वस्कुलेचर, यहाँ पे कोलेटरल्स जनरली डेवलप होते हैं। नॉर्मल साइड हमें जब देखने मिलते हैं डिस्टल इसोफेगस एंड रेक्टल, ये बहुत कॉमन रहते हैं। इसको कहते हैं कैप्यूट मेडुसा, अराउंड पेरिअम्बिलिकल रीजन में रहते हैं। कोलेटरल्स इस तरह से डेवलप हुए रहते हैं। ये इसोफेजियल वराइसिस, गैस्ट्रिक वराइसिस, रेक्टल वराइसिस, इस तरह से अंडर एंडोस्कोप आप देख सकते हैं। रक्तपित्त, चरक निदान स्थान में जो रक्तपित्त की ये संप्राप्ति आई है, ये परफेक्ट पोर्टल हाइपरटेंशन का डिस्क्रिप्शन है। तस्मिन् प्रमाण अतिवृत्ते पित्तम प्रकोपितम शरीरम अनुसर्पति यदेव यकृत्प्लीह प्रभवाणाम च स्रोतसम लोहित अभिष्यंद गुरुणी, मतलब चक्रपाणी उस पे कहते हैं प्रवृद्ध लोहित स्यंदेन गुरुणी उत्सन्नानि और विवृतानि, मतलब गुरु, उत्सन्न और विवृत, इस तरह से एक प्रकार का क्लॉट डेवलप होता है। मुखान्यासाद्य प्रतिरुंद्यात तदेव लोहितम दुष्यति, फिर आगे उसके कुछ 2 प्रकार आते हैं। अभी सुश्रुताचार्य ने जो प्लीहोदर बताया है और चरकाचार्य ने जो प्लीहोदर बताया है उसमें थोड़ा भेद है। सुश्रुताचार्य ने जो विदाही और अभिसंधि हेतुओं से जब दृष्टि होती है, उधर प्लीहोदर डेवलप होता है, तो उसका कफपित्तज ये संप्राप्ति बताई है। क्षीण बलो अति पांडु, ये जो है ये इसोफेजियल या वराइसिस डेवलप होने के बाद उत्पन्न हुआ ये प्लीहोदर है। और चरकाचार्य ने जो प्लीहोदर बताया है, शोणितम व रसादिभ्यो विवृद्धम तम विवर्धयेत्, मधुर आहारेभ्यो रक्तवर्धनेभ्यो विवृद्धम रक्तम तम विवर्धयेत्, ऐसे गंगाधर टीकाकार कहते हैं, जो नॉर्मल क्लिनिकल फेनोमेना में रहती है। लेकिन यहाँ पे जब
रक्तपित्त में दो प्रकार की संप्राप्ति रहती है, च्युतस्य व वृद्धि, अच्युतस्य व शोणितो वृद्धिया वृद्धिर्भवति। आपको समझ में आ रहा है ना एग्जैक्टली किस तरह की संप्राप्ति है वो? नहीं आता रहेगा तो हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। शोणितम व रसादिभ्यो इति अत्रादि शब्द प्रकारवाची मांसादि धातुओं से द्रवांश लिया जाता है, वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज फ्लूइड इंक्रीज होता है और वहां पे रक्त वृद्धि होती है। इस तरह से रक्त इसकी फ्लीहोदर की संप्राप्ति होती है, जो चरकाचार्य ने कही है, और सुश्रुताचार्य ने कही है, वो पूर्णतः अलग है। ऐसे क्लिनिकल कंडीशन में हम चंद्रकला रस का प्रयोग करते हैं। चंद्रकला रस की एक बार फलश्रुति हम देखेंगे। इसमें क्या क्या है? अभ्रक भस्म है, ताम्र भस्म है। ताम्र जैसा उष्ण द्रव्य भी इसमें वर्णन किया गया है, इसमें डाला गया है। जो इसमें द्विगुण कज्जली है, कुछ वनस्पति जो भावना द्रव्य है, उसमें कुछ प्रक्षेप द्रव्य है, और एंड में अंत में 7 द्राक्षाक्वाद की 7 भावना है। चंद्रकला रस ये एक मधुर तिक्त रसात्मक है जो रुक्ष गुणात्मक है। हमारा द्रव्य कैसा होना चाहिए? तो पित्त शामक होना चाहिए, दाह शामक होना चाहिए, साथ में वो यकृत और सिरागामी भी होना चाहिए। उसकी फलश्रुति वात पित्त गदापह अंतर्बाह्य महादाह विद्वांसनम महागण। बहुत कम फलश्रुतियों में, कल्पों की फलश्रुतियों में काल बताया जाता है, लेकिन चंद्रकला एक उसका वैशिष्ट्यपूर्ण है जो ग्रीष्म काल और शरद काल में विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए। ऊर्ध्व अध रक्तपित्त, रक्तवांति, रक्त महाश्रुति, ऐसे सभी क्लिनिकल कंडीशंस में आप चंद्रकला रस का प्रयोग कर सकते हैं। कनकांबुदम, लीडम आशु कुरुते अंगप्रुहणम रोगराजम उरक्षतम जयत रक्तपित्तम अथ पीनसम भ्रमम वर्णहानिम अबलम च पावकम। लोह सर्वस्वम में आया है, जहां पे सुवर्ण भस्म और अभ्रक भस्म दो ही मुख्य घटक है, जिसको जीवनीय गण मुस्ता वंश और उशिर के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत बहुत बार मैं ये कनकांबुदम का प्रयोग करता हूँ पोर्टल हाइपरटेंशन या एंड स्टेज लिवर डिसीज में इसका मैं प्रयोग करता हूँ। प्रवापिष्टि, रस कामधेनुकार कहते हैं कि प्रवापिष्टीय रक्त रोग हरणम, रक्त व स्रोतस की जो वहां पे दुष्टि हुई रहेगी, वहां पे प्रवापिष्टि का प्रयोग करना चाहिए। अग्निदीप्तिकर है, पौष्टिक है, सरल गुणात्मक है, जो धातुर वृद्धिकर है, लेकिन महाक्षय निवारणम ऐसे कहा है। पांडु में इसका प्रयोग कर सकते हैं, विष में श्वास में प्रयोग कर सकते हैं, रक्तपित्त में प्रयोग कर सकते हैं। कफज प्रमेह रहेगा तो प्रवापिष्ट तंडुलोदक के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। तृणकांत मणिपिष्टि, जो पित्तग्न है, रक्तरोधक है, रक्तयुक्त अतिसार रहेगा, पित्तार्श रहेगा, अश्रुक दर रहेगा, वहां पे तृणकांत मणिपिष्टि का हम प्रयोग कर सकते हैं। दुग्ध पाषाण पिष्टि, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, जब पित्तज शूल रहेगा, अभिघात हुआ रहेगा, व्रण उत्पन्न हुआ रहेगा, आभ्यंतर व्रण उत्पन्न हुआ रहेगा, डिओडेनल अल्सर रहेगा, वहां पे दुग्ध पाषाण पिष्टि का हम प्रयोग कर सकते हैं। अतिशय कॉस्ट वाइज एकदम कम उसका कॉस्ट है, ऐसा ये दुग्ध पाषाण पिष्टि है। प्रवाह पिष्टि, तृणकांत मणिपिष्टि, सारीवा चूर्ण, प्रवाह पिष्टि 375 मिलीग्राम, तृणकांत मणिपिष्टि 250 मिलीग्राम, सारीवा चूर्ण 2 ग्राम, मृद्विकादि क्वाक के अनुपान से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अभी रक्तपित्त में कफानुबंधी रक्तपित्त ये एक वैशिष्ट्यपूर्ण भाग आता है। स्थैमित्य, अरुचि, रुल्लास रहेगा, अग्निमंद्य रहेगा, तब श्लेष्मणो विलयार्थम तु
दोषम विक्षम भिषक इसमें इसलिए कफ का विलयन होने के लिए क्षार का प्रयोग करना चाहिए। कौन सा कैसा क्षार रहना चाहिए आगे देखेंगे। पित्तात पीत असितम रक्तम स्त्यायति औष्ण्य चिरेण च। पित्त के उष्ण रक्त में पित्त का उष्ण गुण बढ़ता है तब इसका मतलब पीटीआईएनआर बढ़ने लगता है, प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं। और जब थ्रोम्बोसिस की कंडीशन आती है, जैसे कफानुबंधी रक्तपित्त रहता है, वहां पे रक्त में कफ के पिच्छिल गुण से की दुष्टि हुई रहती है, पिच्छिल गुण बढ़ा हुआ रहता है, तब थ्रोम्बोसिस होने लगता है। अभी हमारा द्रव्य कैसा होना चाहिए, जो कफग्न है, रक्त पे कार्य करने वाला होना चाहिए, जो सिरागामी और यकृतगामी भी रहेगा और रक्त प्रसादन करके विबंधहर, वहां का विबंध नष्ट करने वाला, कफ का विलयन करने वाला, ऐसा हमारा द्रव्य होना चाहिए। जिसमें आता है ताम्र भस्म, जो मधुर विपाकी है, पित्त कफग्न है, ऊर्ध्व अधः परिशोधन करता है, विषहर है और साथ में लेखन भी करता है। हमने देखा था कि सुवर्ण भस्म भी वैसा है, जो ब्रूहण करता है, मधुर विपाकी है, लेखन करता है। सुवर्ण भस्म और ताम्र भस्म में बहुत सिमिलैरिटीज रहती है। ऐसे द्रव्यों का इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। गुल्म, प्लीहा, यकृत, क्षय, अग्निदम, ऐसे सेट ऑफ क्लिनिकल कंडीशंस रहेंगे, वहां पे हम ताम्र भस्म का प्रयोग कर सकते हैं, निसंकोच प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल घबराइए मत कि इसमें हेवी मेटल से या ऐसा कुछ है। अत्यंत सफलतापूर्वक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। काशी से भस्म, इसकी फलश्रुति देखिए, आम संशोषणम श्रेष्ठम मंदाग्नि परिदीपनम। आम का शोषण करके अग्निमंद्य दूर करता है और साथ में दीपन भी करता है। काशीसम रक्त संजननम परम, रक्त संजनन करने में यह श्रेष्ठ होता है। प्लीहाग्न, प्लीहा बड़ी हुई रहेगी तब इसमें काशिस भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। वात कफग्न, ऐसी ऐसी दोषग्नता है। अभी ताम्र भस्म कहाँ पे प्रयोग करना है, काशिस भस्म कहाँ पे प्रयोग करना है। दो क्लिनिकल कंडीशंस आते हैं जहाँ पे पोर्टल हाइपरटेंशन है, थ्रोम्बोसाइटो क्लिनिकल कंडीशन 1, जहाँ पे पोर्टल हाइपरटेंशन है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं, वराइसिस डेवलप होने लगते हैं, कोलेट्रस डेवलप हुए रहते हैं। वहां पे ताम्र भस्म, कमल नाल क्षार, हमने देखा था कि क्षार का प्रयोग करना है। वहां पे पलाश पुष्प क्षार, कमल नाल क्षार, ऐसे सौम्य क्षारों का प्रयोग करना है। गुड़ची चूर्ण, पाठा चूर्ण, इसका त्रायंत्यादि क्वाथ के अनुपात से हम प्रयोग कर सकते हैं। सेकंड क्लिनिकल कंडीशन आती है जहां पे पोर्टल हाइपरटेंशन है, पोर्टल वॉल थिकनिंग है, नॉन ब्लीडिंग है और लो हीमोग्लोबिन है, वहां पे काशी से भस्म देना है। काशीसम रक्त संजननम परम, लो हीमोग्लोबिन है, वहां पे हमें देना है। नॉन ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग कंडीशन नहीं, क्योंकि काशीस भस्म थोड़ा तीक्ष्ण रहता है इन कंपैरिजन टू ताम्र भस्म। पोर्टल वॉल थिकनिंग है, वहां पे काशीस भस्म देना है। उसका अनुबंध वरुणादि क्वाथ के साथ आप दे सकते हैं। वरुणादि कफम हंति मंदाग्नित्वम नियच्छति आड्यवातम शिरशूलम गुल्मम चांत सविद्रदिम। ऐसी क्लिनिकल कंडीशन रहेगी तब काशिस भस्म और कमलनाक्षार, गुड़ची चूर्ण, पाठा चूर्ण, ये वरुणादि क्वाथ के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं। यूजुअली 3 महीने तक इसका प्रयोग करना पड़ता है। केस नंबर 3, a 50-year-old woman complaining of reflux. A detailed history reveals that she has frank regurgitation in the recumbent position and bending forward, typical heartburn that is continuous and has not improved with maximum doses of acid suppressing medications. उसको डिस्पेजिया है, सॉलिड स्टेट डिस्पेजिया, लिक्विड स्टेट डिस्पेजिया, दोनों साथ में है।
Her symptoms have been present for 3 years but have progressively worsened over the past year. She has lost around 13 kgs. She has no other medical problems. डिस्पेजिया होने की वजह से उसको अन्न में संतोष नहीं रहता है. It refers to the sensation of food being obstructed in the food passage anywhere from mouth to the stomach. कुछ अटका हुआ ऐसा सेंसेशन होता है, रुग्ण हमें ऐसा कहता है. साथ में कभी कभी डिस्फीजिया रहता है, कभी नहीं रहता है, कभी कभी सिंपल एसिड रिफ्लक्स रहता है, ऐसी भी कंडीशन रहती है. जब सॉलिड स्टेट डिस्फेजिया, लिक्विड स्टेट डिस्फेजिया दोनों साथ में रहते हैं तब मोस्टली न्यूरोलॉजिकल कॉजेस रहते हैं. जब सॉलिड स्टेट डिस्फेजिया रहेगा तब यूजुअली मैकेनिकल कॉज रहता है. अभी उसके ग्रेडेशंस रहते हैं, कैसे हम थोड़ा ये स्किप करते हैं, आगे जाते हैं. एंडोस्कोपी में बैरेट्स इसोफेगस इस तरह से दिखता है, जहां पे स्क्वैमस एपिथेलियम रहता है which is replaced by columnar epithelium of stomach. शैट्स्कीज रिंग इस तरह से दिखती है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन का उसको लैक्सिटी आई रहती है, उसको शैट्स्कीज रिंग कहते हैं. जहां जहां पे डिस्फेजिया दिख सकता है, हिरकभस्म, वृश्यम, महायुष्यम, अतीव नेत्रयम, बल्यम, त्रिदोषग्नम, अतीव वर्ण्यम. हिरकभस्म कहा हम यूज कर सकते हैं, तो शोथ, पांडु, उदर हरम तथा क्लैब्य हरम परम सर्वोत्कृष्ट रसायन ऐसा हिरकभस्म के बारे में कहा है, जो आयुष्य बढ़ाने वाला है, जो त्रिदोषग्न भी है, षड्रसात्मक भी है और सर्वोत्कृष्ट रसायन है. ऐसे द्रव्यों का हमें इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं. दूसरा आता है कांतलोह भस्म, जो डिस्फेजिया में आप प्रयोग अच्छी तरह से उसका प्रयोग कर सकते हैं. आप प्रयोग करके देखिए, बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आते हैं. कहाँ कहाँ पे कांतलोह भस्म का हम प्रयोग कर सकते हैं? जब गलत क्षत रहेगा, मांसतान, वात संस्थान दौर्बल्य रहेगा, चीरज शोथ रहेगा, गंडमाला लेखन करता है और बहुत थान समुत्थित व्याधि सिस्टेमिक ओरिएंटेशन ऑफ डिसीज रहेगा, तब कांतलोह भस्म का प्रयोग हम करते हैं. सीए इसोफेगस विद स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा और उसमें डिस्फीजिया रहेगा, तब हिरकभस्म 10 मिलीग्राम, कांतलोह भस्म 125 मिलीग्राम, हरिद्रा चूर्ण 500 मिलीग्राम, वचा चूर्ण 500 मिलीग्राम. तो उसको कंठकुब्ज संधिपातहर क्वाक का अनुपान देते हैं. इस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं. बाद में आप सर्वाइलेंस एंडोस्कोपी इसमें करके ले सकते हैं. पैराइसोफेजियल हाइटस हर्निया, पैराइसोफेजियल हाइटस हर्निया में डिस्फेजिया रहेगा, तब हम पैराइसोफेजियल हाइटस हर्निया अप टू सर्टेन एक्सटेंट आप मेडिकली ट्रीट कर सकते हैं. ऑन द कॉन्ट्ररी, स्लाइडिंग हाइटस हर्निया दो तरीके के रहता है. स्लाइडिंग हाइटस हर्निया ये पूरी तरह से ठीक होता है विथ मेडिकल ट्रीटमेंट, लेकिन पैराइसोफेजियल हाइटस हर्निया में बहुत बार सर्जिकल इंटरवेंशन लगता है. इसमें कांतलोह भस्म 125 मिलीग्राम, सुवर्णमाक्षिक भस्म 125 मिलीग्राम, अविपत्ति का चूर्ण 500 मिलीग्राम और भूनिम्बादिक वात के अनुपान से इसका प्रयोग कर सकते हैं. डिफ्यूज इसोफेजियस स्पाज्म रहेगा, मतलब चेस्ट पेन है, मिडलाइन चेस्ट पेन है, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है. वहां पे शौक्तिक भस्म 250 मिलीग्राम. क्यों शौक्तिक भस्म यूज करना है हम आगे देखेंगे. शौक्तिक भस्म 250 मिलीग्राम, विषद इंदु कोटि 75 मिलीग्राम, जिसको आरगवद फलमज्जा 5% के अनुपान से आप प्रयोग कर सकते हैं. डिफ्यूज इसोफेजियस स्पाज्म ये बहुत बार आपके पास रुग्ण आते रहेंगे, ये कॉमन क्लिनिकल कंडीशन रहती है और बहुत बार उसको लगता है कि मुझे हार्ट में कुछ मतलब वहां की कुछ डिफॉर्मिटी है, वो बार बार इसीजी निकालता है, लेकिन उसके नॉर्मल आते हैं.
ये सिर्फ वहां पे उसका मस्कुलेचर का स्पाजम हुआ रहता है। केस नंबर 4, a 28 years old female complaining of abdominal pain and constipation for the past 1 year. There was intermittent abdominal pain and bloating, feeling of constipated, hard stools, difficulty of evacuating stools, and sensation of incomplete evacuation. Her bowel movements was every 1 to 2 days, which was not normal. Bowel movements, her abdominal pain and bloating improved after having a bowel movements. On physical examination, mildly distended abdomen which is tender on palpation without rebound. Other factors were normal. Pelvic examination was normal. Blood markers, endoscopical findings, ultrasounds, everything was normal. This is a case of irritable bowel syndrome. उसके कुछ क्राइटेरिया है जैसे recurrent abdominal pain which should be at least 1 day per week in the last 3 months and related to defecation associated with changes in frequency of stool associated with changes in the form of stool and criteria fulfilled for last 3 months with symptom. ये 3 क्राइटेरिया रहेंगे तभी हम irritable bowel syndrome ऐसा डायग्नोसिस कर सकते हैं. जनरली इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में 2 अलग अलग प्रकार की संप्राप्ति आती है. पहली संप्राप्ति देखते हैं जब अजीर्ण भोजन या द्रव आहार ऐसे अत्यधिक प्रमाण में या बहुत बार लिया जाता है. अग्नि की दुष्टि होती है. लघु अपि अन्नम न पचती, लघु आहार भी उसका पचन नहीं हो पाता. आम निर्मित होती है, उसको शुक्तत्व आता है. शुक्त मतलब विनेगर जैसे उसमें उसमें शुक्तत्व आने लगता है. आम विष की उत्पत्ति होती है. करोति वात संसृष्टम वातजाश्य गदान, दोषों की संसृष्टता रहती है. वहां पे अन्न का विदाह होने लगता है. अदस्तु पक्वम आमम व, आइदर वो आम अधोमार्ग से पक्व या आम ऐसा उसका निस्सरण होने लगता है. ग्रहणी में उसका स्थान संश्रय होता है और ये अतिसृष्ट विबद्ध या अतिसृष्ट प्लस विबद्ध ऐसे 3 अलग अलग क्लिनिकल कंडीशंस आते हैं. एलोपैथी में भी इसी प्रकार वर्णन है. अतिसृष्ट, विबद्ध, अतिसृष्ट और विबद्ध. कॉन्स्टिपेटेड, डायरिया, मिक्स्ड, अल्टर्ड बाउल मूवमेंट्स, मतलब कभी कॉन्स्टिपेशन रहते हैं, कभी डायरिया रहता है. ये दूसरी संप्राप्ति है जहां पे वृक्ष, तीक्ष्ण, मद्यादि ऐसे आहार्य हेतुओं का सेवन किया गया वायु प्रकुपित होता है. पक्ताच उपन्यते, अग्नि की दृष्टि होती है. मूत्र और स्वेद में से द्रवांश पक्वाशय में मार्ग होता है, पक्वाशय में जाता है. द्रव पुरुष होने लगता है. तब जब चिकित्सा की जाती है तब अतिसार की निवृत्ति मतलब अतिसार ठीक होता है. अग्नि दीप्त होने लगता है और फिर से रुग्ण अहिताशन करने लगता है. मतलब अतिसार ठीक हुआ, दीप्ताग्नि, और साथ में मतलब अग्नि बढ़ने लगा है और उसी वक्त उसने वड़ा पाव खाया तो फिर से पित्तधरा कला संदूषित होती है. पित्तधरा कला दुष्ट होती है और द्रव सरण साधर्म्यान फिर में ग्रहणी में स्थान संश्रय होता है. ये एक कंडीशन रहती है. दूसरी कंडीशन रहती है अतिसार अनिवृत्ति, मतलब चिकित्सा की गई, अतिसार ठीक नहीं हुआ, अग्निमांद्य रहा, उसी से भी पित्तधरा कला फिर से दूषित होती है और द्रव सरण साधर में ग्रहणी और उससे ग्रहणी उत्पन्न होती है. ऐसे 2 अलग अलग क्लिनिकल कंडीशंस यहाँ पे मिलते हैं. अभी जब ग्रहणी का चिकित्सा सूत्र देखा जाए तब
भाव प्रकाशकार कहते हैं उसका अजीर्ण ग्रहणी की चिकित्सा कैसी की जानी चाहिए, तो अजीर्णवत उपाचरित लंघने दीपनीयश्च या अतिसारोक्त विधिना तस्य आमम च विपाचय। मतलब हमने जो अतिसार में जो चिकित्सा बताई है वही चिकित्सा हमें यहाँ पे करनी है, ऐसा भाव प्रकाशकार कहते हैं। आम का पाचन करना है, ऐसा कहते हैं। योग रत्नाकर भी वैसे ही कहते हैं, अजीर्णवत उपाचरित अतिसारोक्त विधिना तस्य आमम च विपाचय। सुश्रुताचार्य अलग कहते हैं, जो कृमि गुल्म उदर अर्श इसमें जो चिकित्सा बताई गई है वो ग्रहणी में कीजिए। चरकाचार्य ने एक पूरा ग्रहणी पे अध्याय लिखा है, तो वहां पे स्नेहन स्वेदन शुद्धि लंघन दीपन तक्र दीपनीय घृत चूर्ण लवण क्षार ऐसे सभी द्रव्यों का प्रयोग बताया गया है। चक्रदत्त भी फिर से वही कहते हैं कि अजीर्णवत उपाचरित अतिसारोक्त विधिना तस्यामम च विपाचय। सुश्रुताचार्य फिर से कहते हैं कि सर्वथा दीपनम सर्वम ग्रहणी रोगिणम हितम। मतलब कुछ भी आपको नहीं समझा तो सिर्फ उसका दीपन कीजिए, वो भी सफिशियंट है। अभी इतना सब चिकित्सा देखने के बाद मेरे जैसे वैद्य में के मन में इतना सब संदेह उत्पन्न होता है, इतने सारे क्वेश्चन मार्क्स डेवलप होते हैं कि आमोपाचन करना है, आसवरिष्टम का प्रयोग करना है, लवण क्षार का प्रयोग करना है, शोधन करना है, लंघन करना है, दीपन करना है, एग्जैक्टली करना क्या है, कि परपटी देना है, कि ग्राही द्रव्यों का प्रयोग करना है, एग्जैक्टली करना क्या है। या किसी ने बोला तक्र का प्रयोग कीजिए या घृत का प्रयोग कीजिए, तो करना क्या है, तो देखते हैं। अभी जब पोस्ट इन्फेक्शियस कोलाइटिस मतलब पोस्ट इन्फेक्शियस कोलाइटिस मतलब क्या रहता है, इन शॉर्ट उसको इन्फेक्टिव पैथोलॉजी डेवलप हुई है, उसको ठीक से ट्रीट नहीं किया गया तो गट फ्लोरा डिस्टर्ब होता है और उसको फिर से डायरिया उत्पन्न होता है। ये ऐसी कंडीशन यूजुअल जो आईबीएस जैसी रहती है। ये आईबीएस का फोर्थ टाइप है, जो हमने सेकंड टाइप ऑफ संप्राप्ति देखी थी। ये है पोस्ट इन्फेक्शियस कोलाइटिस। वहां पे ये कंडीशन 6 वीक्स टू 6 मंथ्स ये टाइम ड्यूरेशन तक रह सकती है। अभी ऐसी इसमें हमें कौन से द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए या कैसे द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए, जो द्रव्य ग्राही भी होना चाहिए, आमपाचक भी होना चाहिए, जंतुग्न होना चाहिए। देखिए जंतुग्न होना चाहिए, कृमिग्न नहीं बताया है, जंतुग्न होना चाहिए। इन्फेक्शन है, ग्रहणी तक जाने वाला हमारा द्रव्य चाहिए, कफपित्तग्न द्रव्य होना चाहिए, शूलग्न होना चाहिए और रक्तगामी। इतने सारे क्राइटेरिया फुलफिल करने वाला हमारा द्रव्य होना चाहिए। तो कैसा है, मुस्ता है, वृक्षाम्ल है, रसोनादिवटी, यशद भस्म, कुटजारिष्ट ऐसे द्रव्यों का इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। जसद भस्म जो कफपित्त समुत्थित रोग हर, कफपित्त की दृष्टि से होने वाले रोग वहां पे, या श्लेष्म कला संकोच कृन्मतम म्यूकस मेम्ब्रेन जहां पे ब्रेक हुई है वहां पे आप जसद भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। समाख्यातम विशेषण व्रण संस्रावरोधनम, म्यूकस मेम्ब्रेन ब्रेक हुई है, व्रण डेवलप उत्पन्न हुआ है, वहां पे स्राव होने लगे हैं, वहां पे आपको जसद भस्म का प्रयोग करना है। जैसे पोस्ट इन्फेक्शियस कोलाइटिस में आता है आती है कंडीशन, अल्सरेटिव कोलाइटिस में कंडीशन आती है, अमीबाइसिस में ऐसी कंडीशन आती है, मुखपाक में ऐसी कंडीशन आती है, वहां पे आपको जसद भस्म का प्रयोग करना है। जसद भस्म 125 मिलीग्राम और साथ में मिश्री 500 मिलीग्राम के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं, उसको तक्र का अनुपान दे सकते हैं। अभी अवयव बल्य चिकित्सा जो ग्रहणी में करनी चाहिए, अपुनर्भव के लिए करनी चाहिए, उसमें तक्र, वसंत कल्प और परपटी इसका प्राधान्य से प्रयोग होता है। यहाँ पे हम आज सिर्फ हम परपटी के बारे में देखते हैं। रसपर्पटी ग्रहणी, क्षय, कुष्ठार्श, शोष, अजीर्ण विनाशिनी। जो रसपर्पटी अग्नि दीपन करती है, जंतुग्न होती है और पाचन करने पे कामयाब होती है। जीर्ण अतिसार रहेगा तब रसपर्पटी और लघु गंगाधर चूर्ण के साथ हम प्रयोग कर सकते हैं। जीर्ण अमातिसार रहेगा तब रसपर्पटी, हिंगवाष्टक चूर्ण, बिल्व चूर्ण के साथ प्रयोग कर सकते हैं। रसतंत्र सार में ये प्रयोग आया है।
दूषित दुग्धजन्य अतिसार रहेगा, जनरली ये बालकों में होता है। कुछ लैक्टोज इंटॉलरेंस जैसी कंडीशन रहती है, वहां पे भी आप रसप्रपटी और बाल चतुर्भद्र चूर्ण के साथ हम प्रयोग कर सकते हैं। कृमि, जो कृमि से भी ज्यादा स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, ऐसी कंडीशन रहती है, आप ये क्लिनिकली जज कर सकते हैं क्योंकि उसका इन्वेस्टिगेशन बहुत कॉस्टली रहता है और सभी जगह होता भी नहीं है। रसपर्पटी विडंग चूर्ण मुस्ता चूर्ण के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं, अनुपान विडंगारिष्ट के साथ आप दे सकते हैं। अभी पंचामृत पर्पटी, कुछ पॉइंट से मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूं टाइम ड्यूरेशन की वजह से। पंचामृत पर्पटी पारद, गंधक, लोह, ताम्र और अभ्रक, ये 5 घटक द्रव्य उसमें रहते हैं। पारद जो जाठर अनल मांद्य विनाशकर, अतिसारहर, ग्रहणी, गजकर्षण, दक्षत्र, इस तरह से पारद का वर्णन आया है। गंधक जो अति रसायन है, गंधक के बारे में देखिए, आमोन्मोचन शोषण, आम का मोचन करने में और शोषण करने में साथ में ये गंधक कार्यकारी रहता है। जाठराग्निम प्रसूते, अभी मैंने जैसे स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ कहा, वैसे ही सीलियक डिसीज रहता है, जो ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी वगैरह ऐसे या लैक्टोज इंटॉलरेंस, ऐसे सब कुछ, फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस, ऐसे कुछ क्लिनिकल कंडीशंस आजकल देखने को मिलते हैं। ऐसे कंडीशंस में जब एंडोस्कोपी किया जाता है, एंडोस्कोपी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप वहां पे विजिबली देख सकते हैं, वहां पे जो इंटेस्टाइनल विलाय रहते हैं उसका फ्लैटनिंग होता है। अग्नि पूरी तरह से, अग्निमांद्य की ग्रेडेशन बहुत ज्यादा बड़ा हुआ रहता है, बिल्कुल अग्नि पूरी तरह से मतलब नष्ट हुआ रहता है। ऐसे में उसको फिर से उसकी प्रसूति करने का, जाठर अग्नि की प्रसूति करने में श्रेष्ठ ऐसा गंधक है। ये ग्रंथ में आया हुआ शब्द है, जाठर अग्नि प्रसूते, मतलब अग्नि पूरा उसको विलाय एट्रोफी हुआ है, फ्लैटनिंग ऑफ विलाय हुआ है और उसको फिर से उसका बढ़ाने का कार्य ये जाठर अग्नि प्रसूत है। गंधक द्रुति आप प्रयोग करते हैं, गंधक द्रुति का आप त्वचा विकार में प्रयोग करते हैं, यूजुअली अभी किया जाता है। आपको पता है क्या गंधक द्रुतीय कौन से रोगाधिकार में आया है? गंधक द्रुति का अभ्यंतर प्रयोग किया जाता है और मूल वर्णन में गंधक द्रुतीय ग्रहणी में आया है, ना कि कुष्ठ में या त्वचा विकार में आया है। ग्रहणी में आया है। जाठर अग्नि की प्रसूति करने में श्रेष्ठ है गंधक है, कृमिहर है, अग्निकारी है, पाचन करने में श्रेष्ठ करता है। अभ्रक दीपन करता है, नेत्र है, अतिबल्य, आयुष्य बढ़ाने में अग्र है, जो हमने अभ्रक के बारे में देखा। क्षेत्र स्थैर्य वितरती, ग्रहणी ये क्षेत्र समझा तो उसको बल देने का कार्य यह अभ्रक करता है। ताम्र कृमिहर, दुष्टाम च ग्रहणीम हरे ध्रुवम, क्षुत्कर क्षुधा बढ़ाने वाला, क्षुधा उत्पन्न करने वाला, रोपण लघु लेखनम च, जो लेखन भी करता है और रोपण भी करता है, ऐसा ताम्र है। हमें जितना ताम्र तीक्ष्ण लगता है उतना ताम्र बिल्कुल तीक्ष्ण रहता नहीं है। देखिए यहाँ पे जैसे हमने देखा था मधुर विपाकी है, पित्त कफग्न है, ऊर्ध्व अधः परिशोधन करता है, लेखन करता है और साथ में रोपण भी करता है, ये विषग्न भी है, ऐसा ताम्र है। लोह उत्तम दीपन द्रव्य है, प्रबल शूल निर्मूलन, एब्डोमिनल पेन, इंटेंस एब्डोमिनल पेन रहेगा, उसका निर्मूलन करने का कार्य यही लोह करता है, लोह भस्म करता है। आयुष प्रदाता, कोष्ठ समाश्रित, पित्तम विवृद्धम तु मलाभिधेयम, कोष्ठ में जो पित्त समाश्रित बड़ा हुआ रहता है उसको मल मार्ग से बाहर निकालने का कार्य लोह करता है। अति रसायन है, बलकर है। अभी पंचामृत पर्पटी, उसकी फलश्रुति देखिए, नाना वर्ण ग्रहण्याम
रुचि समुदय दुष्ट दुर्नाम का दो। नाना वर्ण की जो ग्रहणी रहती है, नाना वर्ण ग्रहणी, इसमें बहुत आयुर्वेदीय मल परीक्षण में बहुत उसके वेरिएशंस आते हैं, जो जो अलग एक सेशन का टॉपिक है। छर्द्याम दीर्घातिसारे, दीर्घकालीन अतिसार रहेगा, ज्वर भर कलिते रक्त पित्त क्षय। हमने जो देखा कि घृतपान, अरिष्ट, तक्र या ऐसे सभी द्रव्यों का प्रयोग जो अग्निवर्धक भी है, आमपाचक भी है, ऐसे द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। अभी अग्नि बढ़ा हुआ है, अभी जो बढ़ा हुआ अग्नि है उसको स्थिरता देने का कार्य दीप्तम स्थिराग्निम, दीर्घकालीन अतिसार है अभी, लेकिन हमने चिकित्सा करते करते उसको अग्नि बढ़ाया है। अभी अग्नि को स्थिरता देने का कार्य दीप्तम स्थिराग्निम, ये महत्वपूर्ण है। उसका मेंटेनेंस करने का कार्य ये पंचामृत पर्पटी है। पंचामृत पर्पटी से अभी अभी हमें अग्नि बढ़ाना नहीं है, जो बढ़ा हुआ अग्नि है उसको मेंटेन करना है, ये पंचामृत पर्पटी करेगा। पुनरअपि नवकम रोगी देहम करोति, अग्नि स्थिरीकरण, रसायन, वृक्ष, ये पंचामृत पर्पटी का वैशिष्ट्य है। वातज ग्रहणी में अवष्टंभ अधोदर शूल रहेगा, तब पंचामृत पर्पटी शंखवटी के साथ प्रयोग कर सकते हैं। अनुपान उसमें तक्र का ही दे सकते हैं। कफज ग्रहणी, जब कफज ग्रहणी में रुद्र गौरव रहेगा, अग्निमंद्य रहेगा, उदर गौरव रहेगा, तब पंचामृत पर्पटी बिल्व चूर्ण और त्रिकटु चूर्ण के साथ प्रयोग कर सकते हैं। सदाह श्वेताभ मल प्रवृत्ति, मुखपाक रहेगा, पांडु और आस्य वैरस्य रहेगा, तब पंचामृत पर्पटी मुस्ता, कुटज, शुंठी इसके साथ और उसको धान्य पंचक्वात का अनुपान दे सकते हैं। अतिशय लाभप्रद होता है धान्य पंचक्वात के साथ, ये कॉम्बिनेशन आप दीजिए, अत्यंत बेहतरीन रिजल्ट्स आते हैं। सज्वर ग्रहणी, जब अमीबाइसिस जैसी कंडीशन रहेगी, तब पंचामृत पर्पटी बिल्व चूर्ण, सप्तपूर्ण चूर्ण, पर्पटक चूर्ण, मुस्तादी प्रमथ्या जैसे द्रव्यों का के अनुपान से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। सुवर्ण पर्पटी, ग्रहणी, ग्रहणी विविधां हंति यक्ष्माणं च विशेषतः अष्टविध शूल, शूलम अष्टविधम वृक्ष सर्व रुजापह, जो सुवर्ण एकमेव पर्पटी है जो पित्तग्न है, बताइए, वो सुवर्ण पर्पटी है। जो ओजोवर्धक है, वृक्ष है, मर्म रक्षक, सुवर्ण ये मर्म रक्षा का कार्य करता है। अष्टविध शूल कम करने का कार्य सुवर्ण पर्पटी करता है। पित्तज ग्रहणी, अल्सरेटिव कोलाइटिस में पैनकोलाइटिस की कंडीशन रहेगी, वहां पे अतिसार, तृष्णा, दौर्बल्य रहेगा, तब हम सुवर्ण पर्पटी प्रवाह जसद भस्म उशिर चूर्ण के साथ प्रयोग कर सकते हैं, जिसको दाढ़ी में स्वरस का अनुपान दे सकते हैं। ड्यूडेनल अल्सर में सुवर्ण पर्पटी, दुग्ध पाषाण पिष्टी और साथ में मौक्तिक युक्त कामदुदा इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें नवनीत और शर्करा का अनुपान आप दे सकते हैं। यूजुअली इसको 3 मंथ्स उसका ड्यूरेशन तक उसको प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। It is about to 11 now. So shall I continue or what to do? Dr. Chinmay, let's continue for another 10 to 15 minutes, if that's okay with you. Okay. Yeah, okay. लोह Thank you, पर्पटी, Doctor. सुतिका ज्वराश्च एवं ग्रहणी अति दुस्तरम, आम शूल अतिसाराश्च, पांडुरोगम स कामलाम, प्लिहानम अग्निमांद्यम च भस्मकम च तथैव च। ये शूलग्न है, शैथिल्य हर है, जहां जहां गात्र शैथिल्य रहता है वहां वहां लोह का भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे लोह भस्म हम पर्पटी फॉर्म में, ग्रहणी को जो शैथिल्य आया है वो दूर करने के लिए लोह पर्पटी का हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं, जो पित्त कफग्न है। ग्रहणी और साथ में पांडु रहेगा, ऐसी सीलियाक डिसीज में ऐसी कंडीशन आती है, वहां पे लोह पर्पटी, लघुमालिनी वसंत और त्रिकटु चूर्ण इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ग्रहणी
और कामल ऐसी कंडीशन रहेगी तब लोह पर्पटी के साथ भृंगराज चूर्ण, किराताद्य चूर्ण इसके साथ हम प्रयोग कर सकते हैं। ताम्र पर्पटी जो कफवातग्न है, लेखन करती है और अग्निवर्धक है, परिणाम शूल में उपयुक्त है। वहां पे हम ताम्र पर्पटी, कपर्दिक भस्म और त्रिफला चूर्ण के साथ प्रयोग कर सकते हैं। ये अलग अलग क्लिनिकल कंडीशंस हमें दिखाई देती है, देखने मिलती है। डियोडेनल अल्सर, गैस्ट्रोडियोडेनल, क्रॉन्स डिसीज, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, इलियोसिकल वॉल सिंड्रोम, वहां पे हम अलग अलग पर्पटियों का इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। केस नंबर 5, a 38-year-old male complaining of heartburn since 10 months, regurgitation since 2 months, sourness in the mouth since 20 days. No other medical history, no nausea, vomiting, abdominal pain, odynophagia, dysphagia, weight loss, etc. On endoscopy, it was revealed to be gastroesophageal reflux disease. अभी जब अम्ल पित्त की चिकित्सा देखते हैं तब वहां पे इस तरह से चिकित्सा बताई गई है। तो रक्तपित्ते अपि यच्च उक्तम यत् शूले चापि पैत्तिके तत्सर्वं कार्ये धीमान अम्लपित्ते विशेषतः, मतलब रक्तपित्त में जो चिकित्सा बताई गई है, पैतृक शूल में जो चिकित्सा बताई गई है, वही अम्लपित्त में हमें देनी है, ऐसा वंगसेन ने कहा है। और अधोग अम्लपित्त में जो पित्तज ग्रहणी में चिकित्सा बताई गई है, वही अधोग अम्लपित्त में चिकित्सा देनी है। निघंटु रत्नाकर कहते हैं अम्लपित्ते प्रयोक्तव्यो कफपित्त हरो विधि, कफपित्तग्न ऐसे हमें ऐसे द्रव्यों का हमें प्रयोग करना है। कुछ लोह संयोग है जो धात्री लोह, अभ्र लोह, सप्तामृत लोह मतलब लोह भस्म, ये सभी कंडीशन में अम्लपित्त है, लेकिन एसोसिएटेड कंडीशंस बदलते हैं। जैसे लोह भस्म यष्टि मधु आमल की, जिसको गुरुचि स्वरस की भावना है, धात्री लोह नाम से जाना जाता है, वो चक्षुष्य है, पलितग्न है, कफपित्त समुद्भवान जयति, कफपित्तग्न है, ऐसे हम वहां पे हम दे सकते हैं। अब्र लोह जो अम्लपित्तग्न है, झर्दीहर है, ज्वरहर है, इस तरह से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। और जो सप्तामृत लोह जो नेत्र रोग में उसका प्रयोग कर सकते हैं, अनाह, मूत्र संग, शोथ ऐसे रहेगा अम्ल पित्त के साथ, वहां पे हम सप्तामृत लोह का प्रयोग कर सकते हैं। साम अम्ल पित्त रहेगा, निराम अम्ल पित्त, साम अम्ल पित्त रहेगा, सुवर्ण मक्षिक भस्म, ताम्र भस्म, शंख भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। निराम अम्ल पित्त में अभ्रक भस्म, मौक्तिक पिष्टि, जहर मोहरा पिष्टि का प्रयोग कर सकते हैं। ये अलग अलग अम्ल पित्त की अलग अलग व्याधि अवस्था आती है, उसके अनुसार उसके कुछ योग वहां पे हम प्रयोग कर सकते हैं। अभी चिकित्सा की दृष्टिकोण से कुछ जो प्रकार है, जैसे वातज, कफज, वात कफज, कफ पित्तज, श्लेष्म पित्तज, इस तरह से प्रकार बताए गए हैं। जनरली श्लेष्म पित्त देखिए, कफ पित्तज और श्लेष्म पित्त ये अलग अलग प्रकार है। माधव निदान से आप देखिए, कफ पित्तज अम्ल पित्त अलग है और श्लेष्म पित्त नाम का ही अलग व्याधि है, ये अलग कंडीशन है। भ्रमो मूर्छा, अरुचि, छर्दी, आलस्यम च शिरोरुजा, प्रसेको मुखमाधुर्यम, इस तरह से श्लेष्म पित्त का वर्णन है। जहां पे अभी वातज अम्ल पित्त रहेगा, रजत भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। कफज अम्ल पित्त, ताम्र भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। ये सभी तरीके के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, रुग्ण आते हैं। सिर्फ हमें देखना चाहिए कि कौन से अवस्था में रुग्ण हमारे पास आया है। जैसे वात कफज है, रुत कुक्षी कंठ दाह, तिक्ताम्ल है, कटकोद्गार है, प्रवाह पिष्टि का प्रयोग कर सकते हैं। कफ पित्तज अम्ल पित्त है, करचरण दाह, उष्णता, अत्यंत अरुचि, ज्वर, कंडू, मंडल, पीड़का रहेगी तब सुवर्ण मक्षिक भस्म का प्रयोग करना है। श्लेष्म पित्त रहेगा तब शंख भस्म का प्रयोग करना है। पोस्ट फंडोप्लाइकेशन, वहां पे सुवर्ण मक्षिक भस्म, शौक्तिक भस्म, गुड़ुचि, शटी चूर्ण, सारिवा चूर्ण 500 मिलीग्राम इसका हम प्रयोग करते हैं। पोस्ट फंडोप्लाइकेशन कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसके बाद रुग्ण हमारे पास आते हैं, तो कभी कभी कंडीशन वैसे ही रहती है जैसे बिफोर फंडोप्लाइकेशन होता है, तभी ये द्रव्यों का हम प्रयोग कर सकते हैं।
इरोजिव गैस्ट्राइटिस रहेगा, तब प्रवाह पेटी जसत बसना, श्लेष्म धराकला का संकोचन करना है, वहां पे रक्तपित्त जैसी भी हमें चिकित्सा करनी है, तब प्रवाह पेटी जसत भस्म सारिवा चूर्ण का प्रयोग करना है, जिसको द्राक्षादिक्वात का अनुपान दे सकते हैं। थोड़ा सा आगे जाता हूं मैं। लास्ट केस है केस नंबर 6। A 60-year-old female complaining of intermittent coughing and breathlessness, increased urine frequency and quantity of 16 to 18 times per day, bleeding per rectum of around 1 to 1.5 bowel, unexplained weight loss of around 20 kgs in say 6 months, recurrent UTI और पिछला मल प्रवृत्ति। शी इज अ नोन केस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड इंटरस्टिशियल लंग डिसीज। देखिए वहां पे अल्सरेटिव कोलाइटिस भी उसको रुग्ण को है, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज है, और वहां पे आगे जाके लंग फाइब्रोसिस भी हुआ है। हाँ, थर्ड पॉइंट है रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी उसको था। ANA स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, history of pulmonary cox in 2017, hypersensitivity pneumonitis in 2018, COVID-19 in 2020, and interstitial lung disease of grade 3 which was progressing, and fibrosing interstitial lung disease in 2022. Since March 2023, on continuous oxygen support for 24 hours a day. अभी इतने सारे उसके व्याधि संकर होने के कारण हमें ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए जो अल्सरेटिव कोलाइटिस मतलब बृहदांत्र पे जाएगा, फुफ्फुस पे जाएगा और बस्ती पे काम करेगा। ऐसे द्रव्यों का हमें यहाँ पे चयन करना आवश्यक था। सुवर्ण माक्षिक भस्म, स्यान माक्षिकम मधुर तिक्त कषाय शीत उष्णम क्वचित रुचि विलेखी। सुवर्ण माक्षिक भस्म ये बस्ती आमयो गुदोत्थ विषापहारी। देखिए बस्तीगामी द्रव्य है, उदर गुदोत्थ, ऐसे जहां पे व्याधि संकर है वहां पे हम सुवर्ण माक्षिक भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। वंग भस्म, वंग भस्म जनरली हमें वृक्ष या इस तरह से हमें पता है या प्रमेह के बारे में पता है, लेकिन वंग भस्म का एक विशेष है, मृतंतु वंगम परिशीलितंतु विनाशयत न अतिचिरेण नूनम चिरोत्थितम श्वास नली विलग्नम कफम प्रवृत्तम। जो श्वास नलिकाओं में जो कफ बड़ा हुआ कफ है और चिरकाल से है, उसको मल मार्ग से निकालने का कार्य वंग भस्म करता है। इतना अद्भुत वर्णन दिया है। वंग भस्म के आगे एक वही बताया गया है, जो वंगो अखिल मेह वर्गम, जो हमें पता है प्रमेय में उपयुक्त होता है। तो ऐसे द्रव्य का हमने प्रयोग किया था। मौक्तिक पिष्टि, मौक्तिकम मधुरम शीतम क्षीण वीर्य से वर्धनम, क्षीण वीर्य हुआ है, भारक्षय हुआ है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, ये ब्लीडिंग पर रेक्टम है, वहां पे हमें उसका वर्धन करने का कार्य जो मौक्तिक पिष्टि करेगा। क्षय च एवं विनाशय कफ पित्तग्न है। अभी भस्म संयोग, कुछ ऐसे भस्म संयोग होते हैं जो अलग ही उसका फलश्रुति दिखाते हैं, जैसे मृत विद्रुम संयुक्तम मौक्तिकम परिशीलितम हंति फुफ्फुस दौर्बल्यम चीरकाल समुत्थितम। मतलब प्रवाह पिष्टि, मौक्तिक पिष्टि या अभी यहाँ पे मृत विद्रुम कहा है, लेकिन पिष्टि फॉर्म में जनरली यूज करना चाहिए। ये मौक्तिक पिष्टि और प्रवाह पिष्टि, इसका साथ में प्रयोग किया जाने पर चीरकाल समुत्थित फुफ्फुस दौर्बल्य दूर होता है, ऐसे बताया गया है। तो ऐसे द्रव्य का हमने प्रयोग किया था, प्रवाह पिष्टि, मौक्तिक पिष्टि, सुवर्ण मक्षिक भस्म और वंग भस्म, वो मात्रा में हमने प्रयोग किया था जिसको भारंगी आदि क्वाथ का अनुपान दिया था। लास्ट केसेस, सॉरी 7 केसेस थे। 43-year-old मेल मुखपाक, जिसको मुखपाक है व्रणोत्पत्ति मल विबंध सिंस मोर देन 3 years,
मुखरोग हमें पता है कि मुखरोग ये कफ और रक्त भूयिष्ठ कफास्त्र भूयिष्ठ ऐसे योग रत्नाकर ने कहा है। यहाँ पे सुवर्ण गैरी स्वादु स्निग्धम हिमम नेत्रम कषायम रक्तपित्तनु जो रक्तग्न है ऐसे आलेपनार्थ सुवर्ण गैरिक का प्रयोग किया जाता है। सुवर्ण माक्षिक भस्म जो तिक्त मधुर है, योगवाही है, कुष्ठनुत है और कफपित्तग्न है। ऐसे सुवर्ण माक्षिक भस्म का प्रयोग अभ्यंतर किया गया। और जसोद भस्म, सुवर्ण माक्षिक भस्म भी कफपित्तग्न है और जसद जसद भी कफपित्तग्न है। वहां पे श्लेष्म कला का संकोच करने वाला है, व्रणों का स्राव रोधन का कम करने वाला है। ऐसे जसद भस्म का प्रयोग सुवर्ण माक्षिक भस्म प्रभावृष्टि के साथ में किया गया है, जिसको आरक बदादी क्वाद का अनुपान दिया गया और शुद्ध सुवर्ण गैरी ये प्रतिसरणार्थ किया गया। Shall we stop here? If Dr. Chinmay, if you're okay that we can stop here logically, then I think we can do that. pardon? सर लॉजिकल ब्रेक करना है तो सर हम लोग कर सकते हैं। आपका जो नहीं, केस question. ओके ओके ठीक है, so we can stop here sir. We can stop. Yes sir. Okay, fine. Okay, so I'll just start my camera here. Thank you very much for patient listening, and sorry from my side for delaying. And thank you very much for organizers for giving me an opportunity to deliver my session. Thank you. Yeah, thanks a lot, thank you so much, Dr. Chinmay, for that insightful and enriching presentation today. Your expertise and knowledge have helped us with a deeper understanding on how this topic can be helpful to all the doctors who are present here. So before we conclude, I would like to open the floor for any questions, and please feel free to raise your hand or type your question in the chat box, and Dr. Chinmay will address them. The Q&A shall be hosted and managed by Dr. Snehal Makwana. Yes, thank you, Anand. Very insightful lecture, Dr. Chen. It was wonderful. Request to everybody, if you want to ask any queries, questions, or your doubts, you can unmute yourself or raise your hands or put it in the chat box. Meanwhile, we have queries and questions. I would like to have one recommendation on the special day of CleanSav. We are completing 1 year now of a Gyanvardhini, and it was an amazing initiative by the CleanSav team to conduct a CMEs for the doctors to share. And the best part of Gyanvardhini is that it gives the opportunity to the young doctors to share their understanding and knowledge. But yes, we have even Dr. Ashish Phadke sir as a speaker in past. One small recommendation is about the CleanSav app. I have been using since many years, and I'm not sure, I'm not remember even when I last used my pen and paper. The interface of the app is so easy that sending the prescription, sharing the receipts, doing the notes, everything is very easy. And I would request everybody to try a trial pack of CleanSav. That will give you an advantage that you will really experience that your clinic is in your pocket with CleanSav. We have a question now, Dr. May. Patient has Gudah in Guduchi Churna combination in port of, I'm not sure what is it. Guddaha. Okay. If patient has a Guddaha in Pittaj Grani, what can be used? I will repeat the question. If patient has a Guddaha in Pittaj Grani, what can be used? Dr. Dr. Chinmay? Chinmay? Shall I repeat the question? Dr. Chinmay, you are on mute, sir.
Hello. Yes. Shall I repeat the question, sir? No. Okay. पित्तज ग्रहणी में रुग्ण को गुददाह रहेगा तब प्रवाबिष्टि और सारिवा चूर्ण के साथ हम प्रयोग कर सकते हैं अभ्यंतर, उसको फिर द्राक्षादिक्वात का अनुपान दे सकते हैं। एंड बाह्य आप शतदौत घृत में सुवर्ण गैरिक का प्रयोग आलेपनार्थ कर सकते हैं, उससे बेहतर रिजल्ट्स आते हैं। बाद में अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से वो आप अपनी चिकित्सा वेरी कर सकते हैं। Next question is significance of Patha and Guduchi Churna combination in portal hypertension. Can you throw some light on it? पाठा पाठा ऐसे जगह यूज करना चाहिए, एक द्रव्य गुण का एक रेफरेंस है वहां पे, कि जहां जहां पे क्लॉट जैसी कंडीशन है, शायद आई थिंक द्रव्य गुण विज्ञानियम गोवा फड़के में रेफरेंस है, जहां जहां क्लॉट की कंडीशन है वहां वहां पाठा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ग्रथित आर्त पाठा कुटज त्रिकटु, ये एक कॉम्बिनेशन आता है। या पाठा गोक्षुर, पाठा गोक्षुर और कुटज, ये कॉम्बिनेशन आता है, वहां पे हम पाठा का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है गुडुची। गुडुची अग्रे है चरक सूत्र स्थान में, जहाँ पे श्लेष्मणु विलयार्थम तु, ऐसा गुडुची का प्रयोग करना चाहिए। कोई किसी को गुडुची का अग्रे याद रहेगा तो प्लीज पोस्ट कीजिए। वहां पे ये कॉम्बिनेशन की वजह से पाठा और गुडुची उसमें यूज किया है। Request Dr. Chinmay, you can stop your screen sharing now. Next question is, any experience of using Bhasma Sanyog in the form of Basti for the ulcerative colitis grade 3 or severe inflammatory conditions? No, I am not used in the form of Basti. I do give in the form of orally only. Okay, very well. Next question. From the Dr. Shilpa. Last few months, I have come across severe constipation in 70 plus elderly patient. How do we deal with it? With the long-term results. First, get her investigated. मतलब सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, 70 प्लस एज है, तो क्यों है वो देखना चाहिए। MRI डिफिकोग्राफी कर सकते हैं, या सिंपल अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, या कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं। पहले निदान होना चाहिए, आदौ निदानम परीक्षे ततो अनंतरम औषधम, बाद में हम उसके अनुसार हम चिकित्सा कर सकते हैं। Yes, very correct. Next question is again from Dr. Ahmed. Any experience of using Piyush Valli Ras in Grahani or Nana Varna Atisar, of which avastha we can use it? No, I have not used Piyush Valli Ras. Okay. Okay. Any more questions from the audience? You can raise your hands or put it in the chat box. Otherwise, Anand, we can conclude the session today. Yeah, I think there was a hand raised by Dr. Shilpa. So I've Dr. Shilpa, you can unmute yourself now. Okay, I think we have another Anand. hand raised. Dr. Ashish has raised a hand. Dr. Ashish, good evening, sir. Sir, please unmute yourself. Sir, and please you can unmute ask yourself. Yeah, good evening. Yeah, good evening. So we can hear you, sir. My question to doctor is, he mentioned about Trailokya Chintamani, right? So there are two questions.
which Trailoki Chintamani Ras he is using, means from which company, which group, whether he prepares himself or get it done through somebody. And can you please share the experiences with Trailoki Chintamani Ras, whether alone or with the combination in bedridden, absolutely deathbed cases? Trailoki Chintamani is with Hiraka and Suvarna Bhasma, and Hmm. we have own preparation. I own a pharmacy, and we are using of that only, and I use in the form of combination, not alone, uh, uh, according to clinical condition. Secondly, uh, I try to avoid in the case of pitta samsrushta avastha. Hmm. It gives bad results. Vata kafagna, it is purely vata kafagna dravya, vata kafagna aushad, and in the form Yes. of that only I use. Okay, but then you said that you are making it, right? Supposing if somebody from the group doesn't have access to your pharmacy, then which Okay. other pharmacy would you like Yes, to? 2-3 pharmacies are preparing now. 4-5 pharmacies are there. They are preparing. Okay, thank you. Okay. Dr. Shilpa, Thank you can unmute yourself and ask your question. Last question for the day. The last Guduchi is Shleshma Shonita Vibandha Prashamananam. For that purpose, we are using Guduchi and Pata combination. Any more Anand, question? over. Okay, Anand, over to so you. No more questions now. Okay, thank you. okay, thanks everybody. So again, so thanks everyone for your active participation and engaging questions today. We hope you found this session very valuable and informative. Once again, a very big thanks to Dr. Chinmay Phondekar for sharing his expertise with us today. And a big thanks to all the participants again for joining us. We look forward to seeing you in our next Gyanvardhini session, which is scheduled on 18th of December to be conducted by Dr. Praveen Tuppad. The topic is application of Dravya Gun in clinical practice. I'm also sharing a few links about a spam-free Gyanvardhini WhatsApp community group, and also a link for of our YouTube channel of Cleansa, where the Gyanvardhini webinars are posted for everybody. So thanks again and again, a big thanks to Dr. Chinmay Phondekar for your valuable time for this webinar. So we'll be closing this webinar now. I wish everybody a very wonderful evening. Thanks again. Thank you. Bye. Thank you.